Everyone, online class 6, subject science, chapter 14, part 2, the water cycle, Jal Chakra. There is a fixed quantity of water on earth. Water, however, keeps on changing its state and location in a cyclic pattern. पृथ्वी पर पानी का एक निश्चित मात्रा है। पानी हव्य और स्थित और बदलता रहता है। यह एक चक्रीय पैटर्न में स्थान है। The cyclic pattern in which water keeps moving from the oceans and seas to the sky as water vapor, from the sky to the land as rain or snow, and from land to the oceans and sea as surface water is known as the water cycle. चक्रीय पैटर्न जिसमें जल महासागरों और समुद्रों से आकाश तक जल वाष्प के रूप में, आकाश से भूमि तक वर्षा या हिमपात के रूप में और भूमि से महासागरों और समुद्र के रूप में चलते रहते हैं। सतही जल को जल चक्र के रूप में जाना जाता है। द वाटर साइकिल occurring इन नेचर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्राकृतिक में होने वाला जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है। The water in the ocean gets heated by the sun and evaporates. The water vaporizes up with the warm air. महासागरों में पानी सूर्य से गर्म होकर बाष्पित हो जाता है और जलवाष्प उठता है और गर्म हवा के साथ। Since the temperatures decrease with an increase in altitude, water vapor cools and condenses to form tiny droplets of liquid water. A large number of such droplets hang together in the air as clouds and might travel to distant areas. When these tiny droplets form a large number of drops of water, they fall to the ground as rain. This is called प्रिपरेशन। चूँकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाता है और जलवाष्प ठंडा हो जाता है और पानी तरल की छोटी बूंदों के निर्माण के लिए सघन बड़ी संख्या में ऐसी बूंदें लटकती हैं, बादलों के रूप में एक साथ हवा में और दूर के क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। जब ये छोटी बूंदें बनती हैं तब पानी के बड़ी संख्या में वह बारिश के रूप में ज़मीन पर गिर जाते हैं और इसे वर्षा कहते हैं। In colder weather, the water drops might freeze and falls as hail or snow. This rain might fall on the ocean as well as on land. The rain that falls on land drains into rivers drought streams. Some of the rain water seep down through the soil and adds to groundwater. Groundwater is pumped out for irrigation, domestic and industrial use. This water eventually reaches the rivers and finally drains into the ocean. ठंड के मौसम में पानी की बूंदें जम जा सकती हैं और ओले या बर्फ के रूप में गिर सकती हैं। यह बारिश महासागरों के साथ साथ भूमि पर भी गिर सकती है। वर्षा जो भूमि पर गिरती है नदियों के माध्यम से नदियाँ में बहती है। वर्षा में कुछ पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है और भूजल में जुड़ जाता है। सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भूजल को बाहर पंप किया जाता है। यह पानी अंततः नदियों तक पहुंचता है और अंत में महासागरों में जाता है। Some rain water gets frozen in the mountains during cold weather. The frozen water melts during summers and joins the rivers on its way to the ocean. ठंड के मौसम में पहाड़ों में कुछ बारिश का पानी जम जाता है और जमे हुए पानी गर्मियों के दौरान पिघल जाता है और महासागरों के रास्ते में नदियों से जुड़ जाता है। This completes the water cycle. This water again evaporates and the cycle repeats. इससे जल चक्र पूरा होता है। यह पानी फिर से बाष्पित हो जाता है और चक्र दौड़ता है। ड्राउट एंड फ्लूड, सूखा और बाढ़। Some places have
heavy rainfall during the monsoon season. Sometimes the rain are so heavy that the rivers start overflowing their banks, resulting in floods. The water also floods agriculture and residential land, causing immense damage to crops, livestock, houses, and roads. Electric lines, water supply, and the communication network also get affected. मानसून के मौसम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होती है। कभी कभी बारिश इतनी भारी होती है कि नदियों और अपने तटों पर बहने लगती है और इसका परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। पानी कृषि और आवासीय भूमि को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे फसलों, पशुधन, घरों और सड़कों को भारी नुकसान होता है, जिसमें बिजली की लाइनें, पानी की आपूर्ति और संचार नेटवर्क भी प्रभावित होता है। Coastal areas are sometimes hit by cyclones. During a cyclone, there are strong winds accompanied by very heavy rains. The strong wind causes high waves called tidal waves in the sea. These can cause flooding in coastal areas. तटीय क्षेत्र कभी कभी चक्रवात की चपेट में आते हैं और एक चक्रवात के दौरान बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवा उच्च तरंगों के कारण बनती है, जिसे ज्वार की लहरें कहा जाता है। समुद्र इनसे तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। At the sometimes there are places where there might be no rainfall for several years. This results in a severe shortage of water as lakes and ponds dry up and plants die. Such a condition is now as drought. People and livestock during floods and drought due to shortage of food and water. Such a condition is now as famine. इसी समय ऐसे स्थान हैं जहां कई वर्षों तक वर्षा नहीं हो सकती है। इससे पानी की भारी कमी हो जाती है, क्योंकि झील और तालाब सूख जाते हैं और पौधे मर जाते हैं। इसी तरह की स्थिति को सूखे के रूप में जाना जाता है। लोग और पशुधन बाढ़ के दौरान मर जाते हैं और सूखे की कमी के कारण होता है। भोजन और पानी, ऐसी स्थिति को अकाल के रूप में जाना जाता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, agriculture and industrial growth also affected our water resources. Wastage from homes and factories are dumped in water bodies such as rivers and lakes, which pollute them. Fertilizer and pesticides get washed off by rain into water bodies, causing further pollution. Thus, pollution further reduces the clean water available to us. जनसंख्या में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक विकास में हमारे जल संसाधनों को प्रभावित करते हैं। घरों और कारखानों के कचरे को नदियों और झीलों जैसे जल निकायों में फेंक दिया जाता है, जो उन्हें प्रदूषित करते हैं। उर्वरकों और कीटनाशक को बारिश से जल निकायों में धोया जाता है, जिससे आगे प्रदूषण होता है। इसी प्रकार प्रदूषण हमारे लिए उपलब्ध स्वच्छ जल को और कम कर देता है। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। The demand of water is increasing rapidly due to the increase in population. You know that only a small fraction of water on earth is available to us. Therefore, great care should be taken to conserve water. आबादी बढ़ने के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी का एक छोटा सा अंश ही हमारे लिए उपलब्ध है, इसलिए बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए। जल का संरक्षण करने पे सम वेज बाई विच यू कैन कंजर्व वाटर आर एज फॉलो। कुछ तरीके जिससे आप पानी का संरक्षण कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड रिसाइकलिंग वाटर इन प्लेसेस, फैक्ट्रीज एंड इवन होम। कई स्थानों, कारखानों और यहाँ तक कि घरों के पानी को बर्बादी और रिसाइकलिंग से पानी को हम बचा सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन एज दे हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। पेड़ और अन्य वनस्पतियों को लगाना, क्योंकि वह मिट्टी द्वारा पानी
के अवशोषण में मदद करते हैं। रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिफोर डिस्पोजिंग डैम। उन्हें निपटाने से पहले सीवेज और औद्योगिक कचरों का इलाज करके जल प्रदूषण को कम करना। कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स। However, the construction of big dams has its disadvantage too. It destroys wildlife in large areas, also slit gather in the reservoir over the year, and it might become less useful with time. बांधों को बनाकर बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना और वर्षा जल का भंडारण करना। हालांकि बड़े बांधों का निर्माण के अपने नुकसान भी हैं। यह बड़े क्षेत्रों में वन्य जीवन को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जलाशय वर्षों में जलाशय को इकट्ठा होता है और यह समय के साथ साथ कम उपयोगी हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर productive use. Land-based rainwater harvesting occurs when runoff from land surfaces is collected in ponds, tanks, and reservoirs. वर्षा जल संचयन भविष्य के उत्पादक उपयोग के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूमि की सतह में से अवाह होने पर भूमि आधारित वर्षा जल संचयन होता है और तालाबों और जलाशयों में एकत्र किया जाता है। रूफ बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग involves collecting rainwater runoff from roof surfaces, which usually provides a much cleaner sources of water. The harvested rainwater is stored either in tanks to meet the household needs or directed into deep holes in the ground to replenish groundwater. अब छत आधारित वर्षा जल संचयन में छत की सतहों से वर्षा जल अववाह एकत्र करना शामिल है, जो आमतौर पर पानी का एक बहुत साफ स्रोत प्रदान करता है। कटा हुआ बारिश का पानी जमा हो जाता है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकों में या भूजल को पानी से भरने के लिए जमीन में गहरे छेद में निर्देशित किया जाता है। रूफटॉप rainwater harvesting is the technique through which rainwater is captured from the roof catchments and stored in reservoir. अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह तकनीक है जिसके जरिए छत के कैचमेंट से बारिश का पानी को इकट्ठा या कलेक्ट कर जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नीड वेरी लिटिल मेंटेनेंस व्हेन इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन फ्री वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड यूज। वर्षा जल संचयन प्रणालियों को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है जब इसका उपयोग पानी और घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। थैंक यू।